there is a water dipole structure. Water dipole. There is a substance water dipole. Dipole means what? There is a one-sided quarter. The position is one-sided negative. And there is ionic. What is ionic? Ionic means what? There is a ion substances. Ionic substances means cation and anion. Cation is positive, anion is negative. And then what is the ionic? Ionic means what is the electron transfer one atom to another atom. So hydrophilic example of salt and sugar. There is the best example in hydrophilic substance because of their interact with water and dissolve with water easily. ये easily dissolve होता है water में. And there is a oil. There hydrophobic substance. Hydrophobic example. There is not dissolve in water because of there is a hydrophobic substance. And there is a dipel in water. Means water के ऊपर तैरते हैं. वो water में dissolve होते हैं because of there is a hydrophobic substance. This is a lotus leaves. ये water हम लोग डालेंगे तो वो droplets दिखाएंगे because ये carpet है. कार्पेट जो रहते हैं उनमें वैक्सीनिंग लेयर रहता है. वैक्सीन लेयर है तो ये ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. Takes 2 and 3 minutes. After 3 to 3 minutes, it dissolve in water because of there is a hydrophilic substances. This is the best example of salt, the NaCl. Formula of NaCl, sodium chloride. And there is a hydrophobic example of hydrophobic oil. Oil means there is a they repel in water. They repel in water means जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं. Oil mix नहीं हो रहा है. There is a dissolve in water, but they are not repel. वाटर के ऊपर रिपेल कर रहे हैं. वाटर के ऊपर ऑयल दिख रहा है ऊपर और पानी नीचे दिख रहा है. ये हमारे स्पाइसेस भी हैं, वो भी डिजॉल्व नहीं होते वाटर पे. It is not dissolving water. So triglyceride molecule and benzoic acid. Triglyceride molecule means what? There is a saturated and unsaturated fats. Unsaturated fats means what? There is a cheese, butter, ये जो unhealthy foods रहते हैं, जो fats रहते हैं उनमें, वो triglyceride molecule. Benzoic acid. Benzoic acid means what? There is a added the perfumes and flavoring जो हमारे दवाई रहती है जो फ्लेवर्स करते हैं खांसी के, तो उसमें ऐड करते हैं बेंजोइक एसिड. Good morning, my name is Akhilesh. I am from Anjali English School, Chandivali, and my project is Pythagoras model. And the Pythagoras theorem is basically, it says that the hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. Basically, here this is a base, and this is a perpendicular. It means it is the height b, and it says it is the hypotenuse. Basically, this is a hypotenuse. The Pythagoras says that the square of hypotenuse is equal to the square of some base and perpendicular. It means we can say that c square equals to a square plus b square. And also using by Pythagoras theorem, c square in trigonometric function we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1. And sin square theta, it means sin equals to perpendicular upon hypotenuse and cos equals to base upon hypotenuse. Here sin means perpendicular of hypotenuse. Perpendicular here b upon h. H means c तुम्हाला n square plus cos square theta. चॅनल वर दिसणार संध्याकाळी hypotenuse base मोबाईलवर is दिसेल. a
upon ये शकील hypotenuse C अच्छा है ना square equals to 1. जाओ जाए मैं शाम C को square upon C square. चालेल ना मराठी हिंदी उर्दू गुजराती सगळं चालतं आम्हाला आम्ही पण शाळेवाले जे बाहेर B square plus A square आमचे सर upon C मुख्याध्यापक square equals to 1. कन्व्हेन्स हां B square plus A square equals to C square going into C square. Here A square plus B square equals to C square. It means by trigonometric function using trigonometric function also showing A square plus B square equals to C square. It means C square means hypotenuse square and A square means base chi square plus B square means perpendicular square. नंबरला एक तसं आपल्याला 2 मिनिटांमध्ये डिस्टन्स काढायचं असेल तर याला एक मानला आपण काढायचं असेल तर आपण काउंट करू शकतो ये चैनल पे आप देख सकते हो आज शाम को ये अपना जो सेंटर हो गया हाँ आपका जो किया ना यूट्यूब से आए शकील सर की क्लास नंबरला यायचं त्यानंतर आज शाम में 8 बजे तक 8 बजे के बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शकील सर की क्लास आता टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स म्हणजे आपल्याला या पट्ट्यांच्या साठी हा रेक्टँगल जर तुला पण घे त्या चॅनलवर बघायचं सरांचं यांचं समोरासमोरील बाजू सारख्या लांबीच्या मेन आज आपण या ठिकाणी पट्ट्यांच्यासाठी आपण स्क्वेअर पण दाखवू शकतो स्क्वेअर दाखवताना चारी प्रत्येक तुम लोग हो या तुम लोग का वीडियो बना है क्या बनाना है तुम लोग नहीं कर सकते अभी लेकिन जेजी मान गई बाजू में चल रहा है जो हमारे 2 प्रोजेक्ट है तो नीचे वाले की जजिंग चल रही है और होंगे एक्स्ट्रा इधर आएंगे और इसकी इसकी जजिंग अभी तुरंत है बाजू में सर जजिंग बाजू में नीचे लगी कब से चल रहा है अभी खत्म होने त्यानंतर हा इक्विलॅटरल त्यानंतर हा त्यानंतर 90 डिग्रीचा दाखवायचा असेल विज्युअल करून दाखवायचं असेल अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर आता सपोज या ठिकाणी अपोजिट ब्रेक पण आपण त्यानंतर हे कोनमापक याच्यासाठी आपण समजा विद्यार्थ्यांना ते कोनमापकावर दिसत नाही वगैरे काउंट करायचं आपण व्यवस्थित दाखवू शकतो 90 डिग्री जायचं 30 डिग्री जायचं हे वेगवेगळे रंगाने अंक दाखवले ज़्यादा क्लास हो जाएगा वो करने का
मुझे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Let's start. Circle theorem. First theorem, tangent theorem. You can see here. Radius is perpendicular to tangent. So this radius is perpendicular to tangent at any point. It is rotate and show the students. It's perpendicular to tangent. And next, this is tangent segment theorem. Here we have a point, external point that's outside the circle. From here, the two tangents are drawn. I've used a graph paper to show the centimeters, correct centimeter. So here, the tangent segment drawn from an external point is always congruent. You can see. If I take it front also, it is always congruent. 37 centimeter. Then the third theorem, cyclic quadrilateral. The opposite angles of the cyclic quadrilateral are congruent. So here, these two, angle A and angle C are opposite angles. So I have drawn a circle here. Here I have taken this as 6 centimeter. So the circle radius is also 6 centimeter. So when you place it, on a line to show semicircle, the measure of semicircle is 180 degree. So the opposite angles of the cyclic quadrilateral, when we place it here, it is 180 degree. Similar way, here also, opposite angles are 180 degree. So one more thing you can explain here as a complete circle. The measure of the circle is 360 degree and the measure of the interior angles of the quadrilateral is also 360. Next you see inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem, we know inscribed angle is half of the measure of the intercepted arc. So the angle is half of the intercepted arc. Here, this point is on the circle. Now if you see here, the angle formed here is 20 degree and the intercepted arc is 40 degree. Here, angle formed here is 40 and the intercepted arc measure is 80 degree. Also we can show that angle inscribed in a semicircle is right angle. So this is an angle inscribed in a semicircle. Now the measure of the angle inscribed in a semicircle is 90 degree. Next, last one, tangent secant theorem. So this is a tangent and this is a vertex of an angle. One vertex touching the circle and the other vertex touching the other edge of the circle, that's a secant. Secant touches 2 points on the circle. And if you see here, the angle 60 degree formed here and here it is 120 degree. So the angle formed here is half the measure of the intercepted arc. This arc is intersected, no? Which one is? Which arc is it? Intercepted arc. Intersected? Intercepted arc. Intercepted arc. Yes. Thank you. तो चैनल पे आपको शाम में दिखेगा 8 बजे के बाद। बेसिकली सतही नसीज और कनेक्टिव नसीज, जोड़दार नसीज। ये सादा नसीज के बीच में ये मुरक्कब नसीज है। सादा नसीज में जो खलियात होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। मुरक्कब नसीज में एक से ज़्यादा किस्म के नसीजें होती हैं, जैसे ब्लड, खून में सफ़ेद खलिए होते हैं, सुर्ख खलिए होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। दोनों में फ़र्क बता सकते हैं कि इसमें इनमें जो खलियात के साथ मैट्रिक्स यानी सपोर्ट करने के लिए जेली जैसा माया या फ्लूइड मौजूद होता है।
इनमें आसानी से हम कर भी बता सकते हैं कि इनके जो खलियात होते हैं वो एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं और इनमें खलियात लूजली अरेंज होते हैं। आया और रास्ते में बच्चे लोग आ रहे हैं। पता है किसके लिए बनाया हुआ है? जल चक्र बारिश गिरेगी, जब बादल भर जाएंगे, फाड़ने के लिए जानबूझ के बनाए हुए हैं। पानी से भर जाएंगे ना, जब ये बादल बरसने लगेंगे। समझे? ये बरसने वाला है, थोड़ा बादल बरसे। ये लाइट अच्छा आता है इसका, मोबाइल की टॉर्च से ना इसका लाइट आता है, फिर सूरज लगता है। 1 मिनट आप देखो, यहाँ पर सूरज दिखेगा जब आप 1 सेकेंड में सूरज को चमका देंगे। सूरज ही लगता है ये, फोटो लिया ना तो उसका लगा सूरज ही है। शुरू कीजिए। एक्सप्लेन कर। हाँ, फ्रैक्शन ये जैसे कि आप जानते बच्चे लोग को फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। नहीं अच्छा, ये फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आंसर कैसे आएगा, देखिए ये बताता हूँ। अगर ये +1/5 है और अगर -1/5 दोनों लेंगे तो माइनस का मतलब वो एक स्टेप नीचे जाएंगे मतलब एक स्टेप यहाँ रखेंगे तो नीचे जाएंगे, मतलब आंसर ये 0 आ गया, ऑटोमेटिक आंसर 0 आता है। ये एक ट्रिक है, बहुत अच्छी है, जो मैंने ईजाद किया हूँ, देख लीजिए। और आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। +2/5 +2/5 -1/5 और +2/5 है और -1/5 है, तो माइनस यानी आगे क्या है, माइनस है, तो हमको स्टेप नीचे उतरना है। तो एक से एक स्टेप नीचे उतरेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक यहाँ है ना हमारा मार्कर, यहाँ है +2/5, ये -1/5 है क्वेश्चन हमारा, तो हम एक स्टेप नीचे उतरेंगे तो आंसर ये आ जाएगा आपका 1/5। एक स्टेप उतरे हमने तो ये आपका आंसर आएगा +1/5, ये ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा न्यूमेरिकल अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंस हो, डिनोमिनेटर अगर अलग हो तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको हम और एक बार यहाँ पर हमने 5 का लिया है, 1/5 की रेंज है, 1/4, 1/4, 3/4, इसी तरह से, यानी ज़्यादातर हमने कवर किया है। 2/3, 1/3, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, हमने ज़्यादा कवर किया है। इसी तरह से 3 या 4 लेने का मकसद यही था कि हमने ज़्यादा कवर कर रहे हैं। हाँ, और एक अलग ग्रुप बन नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक राइटर का नज़र आ रहा है। इसको हम लोग हिस्ट्री से रिलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग रिलेट के बाद में, यहाँ पर आ जाते हैं दूसरा जो डिनोमिनेटर है ना, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंस हो तो कैसे करें। जैसे 1/5 हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, देखिए 1 2 3 4 5 है, और ये एक लाइन है, मतलब ये भरा हुआ है, मतलब ये 1/5 है, और यहाँ पर 2/3 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2 को फिलअप कर रहे हैं, 1 2 3 2 को फिलअप किया, तो ये हो गया। अब इसका एडिशन कैसे होता है, देखिए ये 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 3 हम लोग मार्क करेंगे, 3 निशान लगाएंगे, और इसका 5 है तो हम यहाँ 5 निशान लगाएंगे दूसरे पोजीशन। तो जैसे यहाँ पर वर्टिकल है तो इसमें हॉरिजॉन्टल निशान लगाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें हम वर्टिकल निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो हम यहाँ पर 5 निशान लगाएंगे, तो ये 5 वर्टिकल, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, यानी 5 खाने हमने बना दिए। अब ये अब हमारा ये 2 से ज़्यादा होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ गए, फिलअप बॉक्स 2 हॉरिजॉन्टल बॉक्स के हमारे 10 बॉक्स बन गए। अब यहाँ पर देखिए
ये कितना है 1/5, ये 1/5। इसको 3 हम लोगों ने 3 भाग करना है, 3 हिस्सा करना है। तो हमने ये एक हिस्सा किया ऊपर वाला, ये 2 हिस्सा ऊपर वाला, ये 3 हिस्सा ये ऊपर वाला, 3 हिस्से किए हैं। अब यहाँ पर देखिए फिलअप बॉक्स 1 था या 3 बन गया, 1 2 3 भरा हुआ हिस्सा 3 बन गया। और टोटल कितने हैं, ये 15 नजर आएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15, यानी इसका 15 आ गया। और ये कितने भरे हुए देखेंगे, ऊपर जो भरे हुए हैं वो ऊपर आएंगे हमारे, ये 3 और ये 10 यानी 13, यानी 13/15 ऐसे डिफरेंट डिनोमिनेटर पर ही आता है। ये 3 है, अच्छी सी 3। और यहाँ पर हमने ये भी बताया है कुछ यहाँ पर बच्चों को समझने के लिए कि 1/2 1/3 यहाँ से शुरू करेंगे, 1/6 है, ये हिस्सा काट लिया हमने तो 1/5 है, फिर एक हिस्सा काट लिया हमने 1/2 1/6 1/3 अरे ऊपर रहेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाए। ये है ना, इस तरह से बच्चे को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आ जाए मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी हमने लिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये ऐसे ही दो को इस्तेमाल किया हमने, 2 को इस्तेमाल किया है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन ये एक पूरा सर्कल भरा हुआ है और यहाँ पर 1/4 है ये, और ये एक सर्कल है, ये 2/4 मिलाकर हुआ 2 सर्कल, ये 2 सर्कल, एक सर्कल राइट हैंड किया, 2 सर्कल हुआ और ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 है, ये 2/4, ये फिल्म 1 2 2 और ये 3 फिल्म रखते हैं, 3 फिल्म 2 सही 3/4 मम्मी खा पी लेते हैं। तो मेरा टीचर 6 बजे तक खाना नीचे बना रहे थे क्या? हाँ। सब रूम का भी बना रहे, रूम का बना रहा हूँ अभी आपका बना we have tried to show the elements where they are, how it looks, क्या यूट्यूब where they are used. Okay, so we have used models or pictures or real things, near closer things, so that we can come to know that elements are very important in our day-to-day life. They are a part of our food. They are used in cosmetics, medicines. They are also used in rocket science, space science. Okay, we can't forget. And also we have a playful game where we have divided this into 4 blocks, and anyone can remove a clue, they can read it, and they can try to keep this element in that box. They can do mistakes, but even then they can try it and they can learn the properties of the elements. Okay? यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ सर्कल। सर्कल तो आप लोगों को पता है कि 360 डिग्री का होता है। सर्कल क्या होता है, मैनी पॉइंट से क्या होता है, फॉर्म होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने देखो मैनी पॉइंट्स बनाया है। अभी तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैनी पॉइंट, दिस इज़ द फिक्स पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एवरी पॉइंट। ये सर्कल क्या है, इक्वी डिस्टेंस होता है एवरी पॉइंट से। तो एवरी पॉइंट पर अगर इक्वी डिस्टेंस होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये देखो यहाँ पर ये दिस इज़ द फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर है। जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो देखो ये सब इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, जो सेंटर से एनी पॉइंट पर टच करता है सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। इसी रेडियस को अगर हम डबल करें तो डायमीटर हो जाता है, जो सेंटर से पास होता है। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, D इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। डायमीटर एंड रेडियस में क्या रिलेशन है, D इक्वल टू 2r। क्या ये रेडियस और ये रेडियस जो ट्वाइस होता है ये। और सबसे बड़ा ना डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, डायमीटर है ना, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है हमारा। नेक्स्ट है ना, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बच्चों के लिए अभी आगे स्टैंडर्ड में तुमको अभी यूजफुल नहीं है। दिस इज द की पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट में क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस। यू नो सर्कमफेरेंस, व्हाट इज सर्कमफेरेंस? नो, सर्कमफेरेंस इज अराउंड द ऑल पॉइंट, जो ऑल पॉइंट को कवर कर रहा है। ये हमारा क्या होता है, दिस इज द सर्कमफेरेंस। अगर इसमें से मैंने एक पोर्शन को निकाली, थोड़ा सा रिमूव करी, तो वो क्या होता है, आर, पार्ट ऑफ द सर्कल, तो हम क्या कहते हैं, आर। अब यहाँ पर देखो ये 2 रेडियस है, ये पोर्शन है ना, इसको कवर कर रहा है। हियर दिस इज द आर्क एंड हियर 2 रेडियस।
तो 2 रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर क्या होता है बेटा? ये सेक्टर है ना, हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये सेक्टर क्या है मेरा? माइनर सेक्टर। दिस इज स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर एंड बिगर पार्ट इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर। अब इसके बाद होता है सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? ये एरिया किधर फॉर्म करता है? कॉर्ड और आर के बीच में। दिस इज द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो ये क्या होता है? दिस एरिया इज इनक्लोज बिटवीन द diameter and chord and arc of the circle is called a segment. Segment क्या कर रहा है? This is also divided the 2 parts. ये मेरा क्या है? Minor segment and this one is the major segment. So this is the key point of the circle. Get it? ये तुम्हारा basic concept है। ये तुम्हारा 10th standard में है। This is not useful for you. Get it? Thank you ma'am. थैंक यू। हाँ बिस्मिल्लाह बोलिए, बिस्मिल्लाह बोलिए। बिस्मिल्लाह बोलो। चालू करूँ क्या या खाना खा रहे? खाना खाने के बाद करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बट तो है वर्चुअल लाइन। पानी दो, पानी है लेंगे और आप अपने आँख से लेंगे तो कहाँ बनेगा? आपको इमेजिनरी तो यहाँ से लेना पड़ेगा ना। अब तो वही वर्चुअल लाइन ही बना और बोले वाला भरो। ये निकाली तो मेरे भाई। थोड़ा जूम कम करो। साइंस मध्ये काय ऑइल बॉडी पार्ट्स अब मुझे अस्सलामुअलैकुम मिस, कैसे हो? आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पहचाने बिल्कुल। मैं एग्जीबिशन में बुलाया था ना, मेरे बच्चे जो हिंदी में दूँ ना मैडम? मेरे इसमें ना रामायण की कथा मैंने बताई हुई है। जैसे मेघनाथ जी जो थे, इन्होंने जो लक्ष्मण जी के ऊपर बाण चलाया था, उसके बाद वो मूर्छावस्था में गिरे थे, तो उनको उस मूर्छावस्था से निकालने के लिए हनुमान जी खुद गए थे गिरनार पर्वत को उठाने के लिए, और उसके ऊपर जड़ी बूटी थी उसको लाने के लिए। तो आज हमारी जो धरनी माता है, जो हमारी अर्थ है, वो भी मूर्छावस्था में चली गई, क्योंकि उसके ऊपर पॉपुलेशन का दबाव आ चुका है। तो कहना है इस माध्यम से ये है कि हमारी जो धरनी माता है आज वो मूर्छावस्था में जो चली गई है, उसको अगर हमको जागृत करना है तो हमको पॉपुलेशन एजुकेशन, लोक संख्या शिक्षण, ये बच्चों को देना है, और इसकी विचारधारा सारी जनता के मिलनी चाहिए। तब जाके इस धरती माता जो है मूर्छावस्था में जो चली गई है, उसको हम लोग वापस पूर्व स्थिति पर ला सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बायोस्कोप बनाया है, जो चलचित्र है, एक नया माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को स्टोरी बता सकते हैं। यहाँ से देख के ये बायोस्कोप घूमता है, 3-3 बच्चे एक साथ देख सकते हैं इसको। देखो रोलर है, स्टोरी लगाई है अंदर पूरी चलचित्र की। इसके माध्यम से एक लड़की होती है, उसके घर में उसके 5 भाई बहन होते हैं, गरीब फैमिली होती है, छोटे घर में रहते हैं, गरीबी की वजह से उनको कौन से प्रॉब्लम्स
का सामना करना पड़ता है, और अस्पताल में जाना है, गर्दी है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। और यही पिक्चर हम बच्चों को सुनाएंगे और आखिर में हम बताएंगे कि पिक्चर से सीख क्या मिलती है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कम होना चाहिए। तो कैसे कम होगा, ये देखो यहाँ पे सारे पिक्चर्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या रीज़न्स है, पॉपुलेशन के परिणाम क्या है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल स्थलांतर यानी माइग्रेशन। बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में आते हैं माइग्रेट होके, ये भी एक पॉपुलेशन का ज़रिया है बढ़ने का। ऐसे तमाम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे माइग्रेशन है, समाज है, बहुपत्नी प्रथा है, आरोग्य सुविधाओं का अभाव है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रोजेक्ट जिसके लिए बनाया है, उसका मेन कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका मेन इम्पैक्ट जो है इस प्रोजेक्ट का बच्चों को बताना है, वो है हमारा इसके उपाय। तो उपाय क्या करने हैं, तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास कायदा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, तो हम दो हमारे दो, ये पॉपुलेशन हम ना बढ़ने का एक आसान तरीका हमारे सरकार ने निकाला था। लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पर देखो, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे पेपर का कटिंग वहाँ पे लगा है, पेपर में आया हुआ है, वहाँ पे सब जगह पे हम दो हमारे दो एक कंसेप्ट चालू किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम दो हमारा एक, छोटा कुटुंब, सुखी कुटुंब, इस स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ये कंसेप्ट चालू होना चाहिए। और कायदा जो है वो कड़क होना चाहिए कि देखो अभी ये बाल विवाह है, ये बाल विवाह बंद हो, कायदा निकल कर बहुत सारा टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी बाल विवाह बहुत सारे गाँव में होता है। परसों के पेपर में भी कटिंग आया था कि बाल विवाह रोकने वाले, कब रोकेंगे? तो कायदा जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो ये कम होने वाला है। जो छोटी फैमिली है उनको सुख सुविधाएं देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर आप छोटा परिवार रखोगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये होना चाहिए। तब जाके लोग सुधरेंगे और जन जागृति होनी चाहिए कि हमारा छोटा परिवार क्यों होना चाहिए, क्योंकि छोटा परिवार होगा तो हमको इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी जन जागृति होगी तभी जाके हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं और हमारी जो धरनी माता है जो मूर्छावस्था में है उसको हम लोग वापस पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। इसी माध्यम से हम लोग ये पॉपुलेशन एजुकेशन का कंसेप्ट कार्तिका स्कूल राजसर द्वारा बताया गया है। थैंक यू सो मच। तो पहले टू अ पॉपुलेशन अम्यूज़मेंट पार्क, इसके अंदर जाइंट व्हील है हमारा, इसके ऊपर इतने आदमी रखेंगे। ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो जाइंट व्हील सही से नहीं चलेगा, और कम रहेगी तो जाइंट व्हील अच्छे से चलेगा। और फिर ये स्लाइड पोजैकल स्लाइड, इसके ऊपर पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो हमारा पॉपुलेशन अम्यूज़मेंट पार्क ये भीड़ ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर ये पुल एंड हैंडल रेस, इसको क्या करने का, गाड़ी इधर से जाएगी, यहाँ टकरा जाएगी, ये रुक गई, स्टॉप हो गई, वैसा नीचे आएगी तो फिर ये ग्रोटिव, फॉरवर्टी, ब्लैक मार्केटिंग, डिप प्रोस्पेट एंड हॉर्पिंग, ये सब हमारे इंडिया में होता है। तो इनको ये सब पॉपुलेशन है। तो फिर ये जैसे ये देखो ट्रेन, यहाँ पे कम पॉपुलेशन, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर ये बस, और फिर ये गेम है, ये हमारा गेम खेलेंगे मिस, गेम खेलेंगे, आप गेम खेलो मिस, खेलो मिस, ये 250 इधर रखो आप, ये दो यहाँ सब, मतलब आपके 2 किड्स हैं, और ये आपकी 3000, और ये आपकी रोटी, ये लो आप डाइट चलो आगे बढ़ा। 7 तारखेचा GR आला सुट्टीचा 1 2 3, आप स्कूल फीस आपको 500 रुपये दें, तो आप उसमें से हमको 500 रुपये दें, आपके 500 माइनस हो गए। रिटर्न डाइस चलो, डाइस व्हिडिओ बनवते डाइस, हाँ डाइस, हां सगळा हां 1 नाही मोकळं का तिच्या बरोबर जण बाबा फेस्टिवल टू परचेज, मतलब फेस्टिवल के लिए सामान परचेज करना है इतना 100 रुपीज़ में, तो आप 100 रुपीज़ रिटर्न काय आले माहित नसतं काय होतं कामाला 400 डाइस
This Again dice. dice. Right. Give this finish line. 6 1 2 3 4 5 6 ट्यूशन फीस मतलब आप ट्यूशन फीस 100 रुपया दे रहे हैं. Again you want 100. Don't have change. No change. I am giving to change. Thank you. Again child. Dice. Again. Wow. One. नहीं स्कूल पिकनिक मतलब आपके चिल्ड्रन लोग स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये और देंगे. Then you have to pay the 200 rupees. Okay. Okay. Again nice. Again. 4 1 2 3 4. बर्थडे मतलब आपके बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे तो आप 200 रुपया. Give you 200 रुपये. 300 रिटर्न. 300 रुपये रिटर्न. ये पगार इधर ही खत्म हो जाएगा. पेमेंट पूरा इधर ही खत्म हो जाएगा यार. नाइस. अगेन पॉपुलेशन इसी को तो बोलते हैं पॉपुलेशन. 4 1 2 3 4. पॉकेट मनी आपके मतलब आपका कोई बच्चा उसको पॉकेट मनी 100 रुपया दे देगा. 6 बच्चे 6 पॉकेट मनी 600. आबादी भी बढ़ा दिया पॉपुलेशन भी बढ़ा दिया. अगेन dice. फिनिश. विनर गेट गिफ्ट. Winner. Win. Okay. How many rupees are left here? Win. Right. 1300. Okay. Winner is here. वड़ा समोसा. अरे जान दो. इसको गिरी हुई लगा. सुनो जो गरम रहेगा लाओ. मैं पोहा लाई हूँ. अरे पोहा हुआ क्या खाते, रोटी खाओ. मैं खाई और हेल्दी जो खाएंगे तो छोटे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे से
हम जैसे हमें अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, हमें तवाज़ुन ग़िज़ा खानी चाहिए। जो हम दिन भर में खाते हैं उसे हम आमतौर पर खुराक कहते हैं। और हमें अगर हमारी सेहत अच्छी रखनी है तो हमें अच्छे खाने खाने चाहिए, फल सब्जियां और डेली प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, जंक फूड नहीं खाने चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे मैदे होते हैं, तेल बहुत ख़राब होते हैं। और हमें योगा भी करना चाहिए और हमें साफ़ सफाई का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक चार्ट जो हम इनके बारे में बताएंगे कि कैरोट मिल्क बटर वगैरह खाने से हमें विटामिन ए मिलता है, जिसकी वजह से जो रात में देख नहीं पाते डीम लाइट में, उन्हें अगर वो ये सब खाएंगे तो उनमें विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। अडल्ट्रेशन फूड, मिल्क में क्या क्या मिलाते हैं मिल्क पाउडर में, तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। मिल्क में वाटर मिलाते हैं, केमिकल लाइक यूरिया स्टार्च। थैंक यू। By 2 or 3 seconds, the traffic signal will reduce more compared to this. Our project contains traffic signals, and there are some advantages of our project. And you can also see there is some street lights. It helps us to visible at night and for safe driving. Thank you. Our project name is Smart Traffic Optimization. It helps urban mobility. It impacts our economic and environment. Our project ensures to improve safety and efficiency, enhance safety, reduce congestion, improve responsiveness. Real-time traffic management, data collection, AI model training, real-time traffic signal control. When it is overcrowded or congested, the sensor is automatic sensitive to the sensor, and sensors set the timer. When we have to go to some place, we use Google Maps. Google is traffic congestion shows in red color. Google navigation tell us a message and to change the route. Same way here in our project, vehicles are moving. While there is no vehicle, it is lots of time and it's no except for other vehicles which are waiting for signal. If our display is the time for the less number of display by 2 or 3 seconds, the traffic signal will be reduced more compared to this. Thus, our project can manage traffic signal. Traffic signal management, real-time adaptation, AI-powered prediction, easy scalability, and there are some advantages of our project. Cost effective.
You can also see there are some street lights which help us to visible at night and for safe driving. Thank you. Ansari, and he is my partner Ankush Vishwakarma. Wind power is considered a sustainable and renewable energy source which has a much smaller impact on the environment compared to burning fossil fuels. As you can see, if this rotor blade moves, then the generator will produce energy, and this energy transferred to transformer, and the transformer transforms energy into electricity. Here also, how does wind energy work? Wind blows past turbines rotating their blades. The kinetic energy is transformed into mechanical energy. A gearbox spins a generator to produce electricity. Transformer converts electricity to appropriate voltage, and electricity can then be stored or transported to grid for distribution. As you can see, if this rotor blade moves, then the light will on. And some works like pumping water will also be done. Wind power is one of the lowest cost electricity source per unit of energy produced. In many locations, new onshore wind plants are cheaper than the new coal or gas plants. So, if we talk about the United States, it has increased its wind power capacity 30% year over year. Utility scale wind plants in 41 states have created more than 1 lakh jobs for the Americans. So, India also growing and is expected to play a major role in the country's energy future. Thank you. Container. From this container, the waste is separated into dry waste and wet waste by the humans. Then it goes to a separating tank. In a separating tank, it is grinded into very small pieces. Then it goes to a soil mixing tank. In a soil mixing tank, it contains an amount of soil and microorganisms like earthworm, etc. in it. The microorganisms work on it and a soil decompose. Therefore, natural fertilizers and manure are formed. These natural fertilizers and manure can be used in a field or farm to increase the fertility of soil. Then the rest of waste is remaining in the separating tank. It goes to a gas tank. In a gas tank, it is converted into a biogas. Then this gas is transferred to the compressor, and in compressor the natural gas and biogas both are compressed and a CNG gas are formed. This CNG gas are stored in a further cylinders and sent to a CNG pump, and we can use this gas as a fuel in our cars, truck, etc., which is non-polluting as compared to petrol and diesel, and we can also generate electricity from the CNG and biogas. Good afternoon, myself Manisha Gupta. Myself Ritika Yadav. We are from Nansai Vidyaniketan High School. So our topic name is food waste management. We know that food is one of our basic needs. It is important for everyone, whether rich or poor. It is found that rich has plenty of food, whether poor vendors for one-time meal. It is found that one who has plenty of food often wasted it. So our topic name is food management. So there are responsible for food waste, that is residential and restaurant. This food waste collected in this dustbin and this is transferred into this machine. This separated them into food waste and other organic waste. This food waste transferred in this crusher. This crushes down the food particles, and through this pipe, it is stored in the near the turbine. As the turbine rotates, fishing net also rotates. Those fishes come to eat that. Fishing net catches that fishes and send them to this container. These fishes can be supplied in the market as a non-poisonous fish. Power generation. As the turbine moves and rotates itself, the electricity is produced with the help of power generator. The power generator transfers the electricity towards the power station, and power station distribute the electricity to all over the coastal areas. Now, as we all know that Mumbai has rich in coastal lines, all about to 149 kilometers. If any changes occur inside the ocean near the tides, disaster alert system will give us notification about that. Our last part is bioenzyme. Bioenzyme is an organic solution which is made up of fermentation of fruit or vegetable peels, jaggery and water.
Bioenzyme can be used for many purposes such as cleaning, fertilizing and for pet wash also. It is sustainable and doesn't pollute the environment as well. This is Chugg is an innovative food treatment system in India that breaks down organic waste into two products, that is biogas and bioslurry. Biogas can be used for cooking and electricity, and bioslurry can be used as a fertilizer. There are some features of the Chugg, and thank you. बोलो सुरू. नमस्कार, माझे नाव संस्कृती जितेंद्र नाईक आहे आणि माझे नाव समृद्धी महेंद्र चांदोडे आहे. माझ्या शाळेचे नाव गांधी बाल मंदिर. आमचा टॉपिक आहे नैसर्गिक शेती म्हणजेच नॅचरल फार्मिंग. मळणी हे धान्य तयार झाल्यानंतर कणसांपासून वेगळे करण्याची एक प्रक्रिया आहे. शेतात धान्य तयार झाले की ते पिकांपासून वेगळे केले जाते. इथे बहुउद्देशीय मळणी यंत्र तयार केले आहे. हे मळणी यंत्र तयार करण्यासाठी आम्हाला साहित्य लागलेले आहे. लोखंडी पत्रा, रॉड, बेअरिंग आणि लोखंडी पट्ट्या. कृषी यंत्रामध्ये मळणी यंत्र हे सर्वात प्रमुख यंत्र आहे. मळणी यंत्रामध्ये सोयाबीन, गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी इत्यादी प्रकारची धान्य मळणी करता येतात. हे यंत्र पेडलच्या साहाय्याने चालवण्यात येते. हे यंत्र इलेक्ट्रॉनिक मोटरच्या साहाय्याने चालवण्यास अधिक धान्य कमी वेळात मळणी होतात. हे यंत्र तयार करण्यासाठी आम्हाला अगदी कमी खर्च लागलेला आहे. हे यंत्र वाहतुकीत सहज व सुलभ आहे. यात आम्ही स्नायू बलाचा उपयोग करून गतिज ऊर्जा निर्माण केली आहे व त्या गतिज ऊर्जेचे रूपांतर यांत्रिकी ऊर्जेमध्ये केलेले आहे. हे यंत्र एका जागेवरून दुसऱ्या जागी अगदी सहजपणे नेता येईल. Good afternoon, my name is Amber Ayub Siddiqui and being my best companion. My name is Sheikh Mariam Laik Ahmed. And we are from Al-Falah English School and we are from junior group. Today we are going to represent our model which is based on geothermal power plant and comes in the resource management. As you already know that geothermal energy is the energy that generates the heat within the earth. This is the flash tank. The hot water is pumped from underground and turned into steam in the flash tank. This is the steam. The steam turns the turbine. This is the turbine. The turbine turns the generator which produces electricity. This is the cooling tower. It utilizes the geothermal energy to provide air conditioning for building processes. There is a process done here which is known as re-injection. The hot water or liquid is then re-injected back into the reservoir. The hot water is pumped from deep underground through a well under high pressure. When the water reaches the surface, the pressure is dropped, which causes the water to turn into steam. Geothermal power plants used to generate the electricity and heat energy. Our turbine is based on Michael Faraday's law. The earth's heat is the abundant resource, so we can use it as much we want. We can use this energy further to make hydel energy, or we can use this energy in our household purposes. Further, I want to proceed with my partner. It is the current toolest, particularly considering the anticipated growth of sustainable energy production, economic development, cost stability, eco-friendly. Geothermal energy is a renewable resource and has a very low carbon footprint compared to fossil fuel based geothermal energy. Economic development. Building and operating a geothermal energy generates a significant employment that creates both direct and indirect employment. Geothermal energy supports a sustainable low-carbon future and economic development by providing an environmental friendly energy that supports long-term growth without contributing to greenhouse emission. Geothermal power plant represent a critical asset in a transition to a sustainable low-carbon future. Their ability to provide clean, reliable energy make them an essential component of modern energy strategies. Our advantages of this model are: people use geothermal energy for heating, for bathing, and for generating electricity. Geothermal energy uses less water,
than any other power sources. Geothermal energy produces negligible noise while operating at full capacity. In winter, the heat pump pulls heat from the ground and transferring it into our house and making our house warm. In summer, the process reverses by removing heat from our house and transferring it into a cooler ground. This process is repeated once and again and again. सर ढूंढ रहे हैं सारे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है करीब नजरी और बैद नजरी। आँख, हमारी इंसान की जो आँख है। गुड आफ्टरनून। आज मेरा जो टीचिंग एड है ये हमारे इंसानी आँख पर बना हुआ है। इंसानी आँख के बुनियादी दोनों काइस हैं जिसको हम कहते हैं करीब नजरी और बैद नजरी। सेहतमंद आँख का हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद करीब नजरी और बैद नजरी के बारे में देखने वाले हैं। सेहतमंद आँख, अगर कोई इंसान की आँख जो है सेहतमंद है तो हम उसका बेसिक फंक्शन देखते हैं कि हमें वो चेहरा या फिर उसका अक्स नज़र कैसे आता है, हमारी आँख सामने वाले को देखती कैसे है, ये हम पहले देखेंगे। तो हमें ये समझने के लिए मैं 2 लेज़र लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ जो 2 शुआओं का काम करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो रिंग बनी हुई नज़र आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे आँख के बॉल को, आई बॉल जिसको हम कहते हैं। और ये जो लेंस है ये हमारी आँख का अदसा है। उसी तरह से ये लाल जो है ये हमारी अदसे के मसल्स है। ये मसल्स अदसे को फैलाने और सुखेड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से जो नुकाइस होते हैं इस पर भी मुनसिर होते हैं कि हमारी आँख का जो आई बॉल है उसकी गोलाई कैसे है। वो अगर प्रॉपर है तो वो सेहतमंद आँख है, लंबोतरा है तो वो एक नुक्स है, दबा हुआ है तो वो एक तीसरा नुक्स है। नुकाइस को हम बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी हम आते हैं अपनी सेहतमंद आँख पर अक्स बनने के टेक्निक पर कि किस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो अगर मैं 2 शुआएँ यहाँ पर लेंस पर फोकस करूँ तो मुझे प्रॉपर मेरे पर्दे शिपकिया पर एक नुक्ता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों शुआएँ एक जगह मरकूज़ हो रही है और ये आँख एक सेहतमंद आँख है, मरकूज़ हो रही है। मरकूज़ होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ये बसरी असब से दिमाग तक पूरा मैसेज पहुँचाएंगी और दिमाग उसको पढ़ लेगा। तो इस तरह से एक सेहतमंद आँख इमेज हमारे दिमाग तक के पहुँचाती है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है करीब नजरी। करीब नजरी ये नुक्स वाली आँख या इसका जो मरीज़ है वो करीब की शय तो देख सकता है, लेकिन अगर वो शय दूर रखी गई है तो उसे सही ढंग से देख नहीं पाएगा। उसकी वजह ये है कि जो दूर से आने वाली शुआएँ हैं वो पर्दे शिपकिया पर जाने से पहले ही मरकूज़ हो रही है। आप लोग देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि पहले ही मरकूज़ हो चुकी है, जबकि करीब वाली शय की शुआएँ पर्दे शिपकिया तक पहुँच रही है। चूँकि ये करीब वाली शय देख पा रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं करीब नजरी। अब इसका तदारुक हम किस तरह से करें? ऐसा मरीज़ दूर की शय वाज़े तौर पर नहीं देख पाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वो शुआएँ करीब कैसे मरकूज़ हो रही है। देखिए जब मैंने अदसे के करीब अपने लेज़र को रखा हूँ तो यहाँ पर शुआएँ मरकूज़ हो गई। तो इस तरह से ये बिल्कुल आई बॉल के बीच में पर्दे शिपकिया से पहले मरकूज़ हो गई, इसलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे। अब मेरा यहाँ पे काम है, या फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें एक चश्मा देता है। अब वो चश्मा कैसे डिसाइड करता है? अब यहाँ पर जो शुआएँ पहले मरकूज़ हुए मुझे उसको फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए मेरे पास जो अदसा है वो अदसा है मकर अदसा, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्केव लेंस। मकर अदसा कॉन्केव लेंस है। अब ये कॉन्केव लेंस मैंने चश्मे के अंदर इस्तेमाल किया तो प्रॉपर पर्दे शिपकिया पर वो शुआएँ मरकूज़ होना चाहिए। देखिए अब मैं चश्मा लगा दिया तो आप पर्दे शिपकिया पर प्रॉपरली एक नुक्ता देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों शुआएँ मरकूज़ हुई। और उसी तरह से मरकूज़ होने के बाद ये देखिए तीसरी जो डायग्राम है यहाँ पर हमने मकर अदसा इस्तेमाल किया है और मकर अदसा इस्तेमाल करने के बाद शुआएँ जो है पर्दे शिपकिया तक पहुँची और पर्दे शिपकिया तक पहुँचने के बाद बसरी असब के ज़रिए अपने दिमाग तक वो मैसेज पहुँचा देगी जो हमें वाज़े तौर पर शय को बता देगा। अब तीसरा जो नुक्स हमारे पास है या हमारा जो अगला नुक्स है वो है बैद नजरी। बैद के मानी होते हैं दूर, बैद के मानी होते हैं दूर। इसका मतलब ये हुआ कि दूर की शय में वाज़े तौर पर नज़र आ रही है लेकिन करीब की शय नज़र नहीं आ रही है। अब इसकी वजह क्या, देखो दूर की शुआएँ मरकूज़ हो गई हमारी पर्दे शिपकिया पर,
जबकि जो करीब वाली शुआएँ हैं ये पर्दे शिपकिया से परे उसके बाहर जाके कहीं मरकूज़ होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये वो हमारा आँख वाला अदसा, और आँख वाला अदसा अगर मैं मेरा पर्दा, मेरा जो स्क्रीन है, मेरे आईबॉल पर रखता हूँ तो यहाँ पर जो शुआएँ हैं वो हमें मरकूज़ होती हुई नज़र नहीं आएंगी। पर्दे पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हो कि 2 नुकात नज़र आ रहे हैं, 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये शुआएँ मरकूज़ नहीं हुई हैं। अब इन शुआओं को मुझे यहाँ मरकूज़ करना है, या फिर अब ये यहाँ मरकूज़ नहीं हो रही तो कहाँ मरकूज़ हो रही है ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये पर्दे शिपकिया से पीछे या पर्दे शिपकिया के बाद जाकर कहीं मरकूज़ हो रही है। ये देखिए, अब पर्दे शिपकिया के बाद ये शुआएँ मरकूज़ हुई। अब वहाँ पर एक नुक्ता नज़र आया। अब मुझे इन शुआओं को सुकेड़ना है। सुकेड़ने वाला अदसा जो हमारे पास है वो है मुहद्दिब अदसा। फिर हमारे चश्मे के अंदर जो है डॉक्टर हमें सजेस्ट करेगा कि आप मुहद्दिब अदसे वाला चश्मा इस्तेमाल कीजिए। अब मैं अपने स्क्रीन को प्रॉपर पर्दे शिपकिया पर ले लेता हूँ और अब देखते हैं कि इसका असर क्या होता है। अब इस सूरत में जो शुआएँ हैं वो प्रॉपर एक जगह आकर मरकूज़ हुई और बसरी असब के ज़रिए वो शुआएँ हमारे दिमाग तक के मैसेज पहुंचा देगी। अब उसके बाद जो बच्चों के लिए अगला काम हमने किए हैं, ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटी था। फिर उसको बच्चों को क्लास में बैठकर ग्रुप एक्टिविटी देने के लिए इसको थोड़ा सॉलिडिफाई करने के लिए कोशिश की गई है। जैसे दूर की शय साफ़ नज़र नहीं आ रही है, जो हमने इसमें देखा था उसी को यहाँ पर लेने की कोशिश की गई। ये शुआएँ जो है अगर मैं पीछे ले लूँ तो इस तरह से आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको एक्टिविटी टाइप में हम इस तरह से ले सकते हैं कि शुआएँ आ रही है और पर्दे शिपकिया से पहले ही आकर वो मरकूज़ हो गई है। ये एक नुक्स है। इस नुक्स को दूर करने के लिए, इसका तदारुक जो है वो करने के लिए हमने फैलाने वाला अदसा इस्तेमाल किया, जो हमने इसी में किया था। वो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आसानी से। देखिए, इस तरह से शुआएँ जो आगे बढ़ रही है और इस अदसे ने शुआओं को फैला दिया। थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो गई शुआएँ और उसके बाद हमारी आँख का जो अदसा है उसको प्रॉपरली पर्दे शिपकिया पे ले जाके मरकूज़ कर देगा। तो इस तरह से हम उस नुक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। सेम बईद नज़री के लिए भी यही काम किया गया है। बईद नज़री में जैसा हमने देखा था वहाँ पर एक्टिविटी में कि जो पॉइंट्स है वो हमें प्रॉपर नज़र आ रहे थे, उसको भी धागे की मदद से शुआ बताकर हम यह कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया गया है जिसने शुआओं को सुकेड़ा है और जो है प्रॉपर शुआ को पर्दे शिपकिया तक पहुंचाएगा। यहाँ से बसरी असब के ज़रिए दिमाग तक मैसेज पहुंचेगा और वो अक्स दिमाग में बनेगा। अब ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई। तीसरी एक्टिविटी बच्चों के तजस्सुस को उकसाने के लिए किया गया है। इसमें पूरी 6 डायग्राम्स ली गई और इन 6 डायग्राम्स को हम बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये कवर किया गया है और हम बच्चों का तजस्सुस बढ़ा सकते हैं, शक्ल पहचानिए कौन सी है, कौन सी बीमारी है, क्या किया जा रहा है। तो धीरे धीरे मैं उसको नीचे लेते जाऊँगा और बच्चे से पूछता जाऊँगा कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी शक्ल आने वाली, कौन सा दुख आने वाला है, आप बताइए। तो बच्चा जो है धीरे धीरे इसको आगे जैसे ओपन करता जाएगा वो अपने जवाब तक पहुँचता जाएगा। रैंडमली इसी तरह कोई और डायग्राम उठा लेते हैं। ये अगली डायग्राम उठा ली गई। अब इसको अनकवर कर लेंगे। इसको जब अनकवर किया गया तब यहाँ पर ये नुक्स कौन सा है बच्चा यहाँ बता देगा। नेक्स्ट डायग्राम उठा लेते हैं। बच्चे से पूछेंगे क्या नज़र आ रहा है, बच्चे जवाब देते जाएंगे या बच्चे इस काम को ग्रुप में भी करेंगे। और इसकी हेल्प से जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने की तैयारी में रहेंगे। देखिए, जितनी डायग्राम्स हैं ये सब हम ग्रुप एक्टिविटी के ज़रिए भी बच्चों को करवा सकते हैं। अब यहाँ बच्चा खुद पहचानेगा किसका तदारुक हो रहा है। मकर अच्छा लग गया, इसका मतलब वहाँ पे भाई करीब नज़री का जो है
इलाज किया गया है। इस तरह से क्लास के तीनों ग्रुप के बच्चों को इस प्रोजेक्ट के ज़रिए शामिल करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। अभी इसमें जो अच्छा इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर बच्चे को मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये किसका इलाज करने के लिए मैंने मोती बत्सा इस्तेमाल किया। वो हमने शॉ से बता दिया या धागे की मदद से बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग पे जा रहे हैं। इस तरह से बच्चे का जो है ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।